السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آئی ایم ویری سوری لسنرز، کل آپ لوگوں کے لیے میں اسٹوری اپلوڈ نہیں کر سکی۔ انٹرنیٹ کا کوئی ایشو تھا جس وجہ سے اپلوڈنگ میں مجھے کافی پرابلم ہوئی اور میری اسٹوری اپلوڈ نہیں ہو سکی آپ لوگوں کے لیے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بیک ٹو بیک 3 سے 4 ہارر واقعات لائی ہوں، ہارر قصے لے کر آئی ہوں جو بہت ہی خوفناک ہیں اور میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہارر انسیڈنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، میری ریگولر لسنر ہیں لاہور سے، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کا نیم آن ایئر میں نہ کروں۔ ان کی دیورانی نے ایک گھر لیا، وہ گھر پہلے ان کی مدر کا ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ بات جانتی تھی اچھی طرح سے کہ وہ گھر آلریڈی ہانٹڈ تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے وہی گھر پرچیز کیا۔ ہو سکتا ہے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے، اپنے پیرنٹس کی محبت میں، وہاں پر ساری زندگی جو وقت انہوں نے گزارا تھا، اس محبت اور اس چاہت میں انہوں نے وہ گھر خرید لیا، اور اس چیز کو بھی اگنور کر گئی کہ وہ گھر ہانٹڈ تھا۔ جب انہوں نے وہ گھر خریدا، مزید اس گھر کو دوبارہ سے اس کا ایک اور پورشن بنوایا، اور اس میں بڑے اچھی طرح سے اس گھر کو رینوویٹ کیا، ڈیکوریٹ کیا اس گھر کو۔ وہاں پر ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ ایک دفعہ ان کی بیٹی تھی 4 سال کی، جو کہ سیڑھیوں میں کھڑی ہو کر ہنس ہنس کر کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جب اس کی بڑی بہن نے اسے یہ پوچھا کہ تم سیڑھیوں میں کھڑی ہو کر کس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہو، تو اس بچی نے آگے سے یہ کہا کہ یہ میری اسکول فیلو کھڑی ہے، اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ تو اس کی بڑی بہن نے اس کو یہ کہا کہ مجھے تو یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو وہ ایک زوردار کہکا لگا کر ہنسی اور اس کو یہ کہنے لگی کہ وہ دیکھو، وہ تو بھاگتی ہوئی تمہارے پیچھے آ گئی ہے۔ وہ تھوڑی سی ڈر گئی اور اس نے یہ بات اپنی مدر کے ساتھ شیئر کی۔ لیکن جس طرح سے بچوں کی عادت ہوتی ہے خود سے باتیں کرنا، اپنے کھلونوں سے باتیں کرنا، ایزیوم کر لینا کہ میری فرینڈ بیٹھی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا، اتنا سیریس نہیں لیا۔ وہ جو ان کی ڈاٹر تھیں، ان کا روم 2nd پورشن پر ان لوگوں نے بنایا تھا، اور اس میں ان کے بہت زیادہ ٹوائز بھی رکھے ہوئے تھے جن کے ساتھ وہ کھیلتی تھی۔ اس نے وہ سارے ٹوائز اپنے بیڈ کے اوپر ایک سائڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ بیٹھ کر اپنے روم میں اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا، اور وہ اندر سے زور زور سے دروازے کو نوک کر رہی تھی کہ دروازے کو کھولو۔ وہ سب بہت زیادہ حیران ہوئے کہ ان کی بیٹی اندر سے دروازے کو نوک کیوں کر رہی ہے اور اس کو کھول کیوں نہیں رہی۔ جب اس کی چیخوں کی آواز سن کر وہ سب اس کی طرف بھاگے تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور ڈری ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے اپنے ٹوائز کی طرف اشارہ کیا جو کہ سامنے اس کے بیڈ کے اوپر جڑے ہوئے تھے۔ تو سب نے یہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے ان ٹوائز کو، کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ جب میں ان کے ساتھ کھیل رہی تھی تو ایک دم سے یہ سارے ٹوائز اونچا اونچا میرے پر ہنس رہے تھے، اور ان میں سے بہت سی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ بچی بہت زیادہ ڈر بھی گئی اور کافی زیادہ بیمار بھی ہو گئی۔ جب یہ بات سب کو پتہ چلی تو سب نے ان کو یہی کہا کہ جب آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ گھر آلریڈی ہانٹڈ ہے، پھر آپ نے یہ گھر کیوں خریدا، اور اگر خرید ہی لیا تھا تو پھر بچوں کا روم اس طرف کیوں بنایا؟ وہ کہتی ہے آج بھی وہ اسی گھر پہ ہی رہتی ہیں، اور ان کی زندگی میں بہت سے خوفناک واقعات گزر چکے ہیں۔ یہ ہارر انسیڈنٹ لاہور سے میری ایک ریگولر لسنر نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی طرح سے کینیڈا سے میرے ایک ریگولر لسنر ہیں طاہر احمد سلطانی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر کے ایک روم میں سو رہا تھا۔ اس روم میں ہم لوگ بہت کم سویا کرتے تھے، ہم لوگوں کو واضح وہاں پر کبھی کچھ اس طرح سے کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی، مگر کبھی کبھار وہ روم سب کو
थोड़ा बहुत पुरस्कार लगता था। एक दफ़ा रात का टाइम था, मैं उसी रूम में बैठा हुआ था और वहीं पर मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मैं नींद में ही था। मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि मेरे बेड पर मेरे पास आकर कोई लेटा है। मेरे जहन में यही बात थी कि मेरे भाई या मेरे अब्बू होंगे, तो मैं थोड़ा सा उनके साथ होकर लेट गया। मैं बहुत गहरी नींद में था, मगर मुझे ये एहसास हो रहा था जैसे रूम में बाकायदा मेरे पास मेरे बेड पर आकर कोई लेटा है। नींद में ही था मैं, तो मेरा हाथ जब उस चीज़ के साथ टकराया तो उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। उसने मुझे कहा कुछ भी नहीं, लेकिन वो जो बालों का एहसास था उस चीज़ का, मैं वो वाज़िया महसूस कर सकता था। मैं नींद में ही था, मेरी आंख नहीं खुली, मगर मैं उस चीज़ के बिल्कुल साथ लगा हुआ था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रूम में मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं बहुत हैरान हुआ कि रात को मेरे रूम में मेरे साथ कौन आके सोया था। फिर मैंने अपनी अम्मी से ये बात शेयर की और उनसे ये पूछा कि रात को मेरे रूम में अब्बू और भाई में से कोई आकर सोया था, तो उनका आगे से ये जवाब था कि कोई भी उनमें से उस रूम में आकर नहीं सोया। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैं नींद में था, मगर मुझे वाज़िया याद है, वाज़िया मैं उस चीज़ का एहसास फील कर सकता हूँ कि मेरे पास आकर मेरे साथ बेड पर कोई सोया था। और नींद में ही जब मैं उस चीज़ के साथ लगा तो उसके जिस्म पर बहुत लंबे लंबे बाल थे। मेरी अम्मी का आगे से ये कहना था कि उस रूम में जिन्नात हैं और वो जिन्नात ही कोई रूप लेकर तुम्हारे साथ सोए थे। फिर मेरी अम्मी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि उस रूम में कभी भी दोबारा अकेले नहीं सोना। उसके बाद कभी भी दोबारा उस रूम में मैं कभी भी अकेला नहीं सोया, ना ही हमारे घर में से उस रूम में कोई अकेला सोता है। आज भी जब मैं ये चीज़ याद करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। ये ताहिर अहमद सुल्तानी थे जो कनाडा से अपना हॉरर इंसिडेंट शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। इसी तरह से इंडिया से राजपूत सिंह हैं जिन्होंने पहले भी ऑलरेडी मेरे साथ खौफनाक किस्से शेयर किए हैं। उन्होंने एक और खौफनाक किस्सा मेरे साथ शेयर किया है जिसमें वो कहते हैं कि उनके नाना अबू का जो गांव था वो बहुत ही ओल्ड था, लाइक वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी। आज के दौर में भी वो गांव ऐसा ही है जैसे 50 साल पीछे हो। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कोई डेवलपमेंट हुई है तो इतनी ही हुई है कि रोड्स बन गए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लोगों का रहन सहन, उनकी ज़िंदगी आज भी उसी पुराने दौर की तरह है। जो कहानी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, ये कहानी 1952 की है। उनके नाना अबू की टेलर शॉप हुआ करती थी और आज भी वो कहते हैं वो जो उनकी टेलर शॉप थी एक बहुत बड़ा हॉल रूम था। आज भी वो बिल्कुल उसी कंडीशन में है। पुराने दौरों की जो इमारतें होती थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाई जाती थी और आज के दौर में भी जो पुराने दौरों की इमारतें हैं वो बिल्कुल एज़ इट इज़ ही है। वहाँ पर उनके पास उनका एक कारीगर काम किया करता था उनकी टेलर शॉप पे। वो बहुत अच्छा और नेक इंसान था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो छुट्टी लेकर अपनी मिसेस के साथ उनकी फैमिली में कोई शादी थी वो अटेंड करने चला गया। कुछ ही दिन के बाद वो वापस आया तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदली हुई थी। उसके साथ बहुत ही अजीबो गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए थे। अगर वो खाना खाने बैठता था तो उसके आगे जो खाना रखा जाता था उसके खाने से पहले ही वो गायब हो जाता था। वो कोई भी काम करने की कोशिश करता था तो उसके करने से पहले ही वो काम उल्ट हो जाता था। इस तरह से महसूस होता था कि उसके साथ कोई गैर मरई मखलूक है, कोई ऐसी मखलूक है जो किसी को नज़र नहीं आ रही, मगर उसके साथ वो जो कुछ भी कर रही है वो सब देख सकते थे। कुछ दिन के बाद वो अपने काम पर वापस आया। जैसे ही वो सीज़र को हाथ लगाने लगता था वो खुद ब खुद चलने लग जाती थी, खुद ब खुद कपड़े को काटने लग जाती थी। अगर वो कोई कपड़ा सीता था तो वो इस तरह से फटता था
जैसे उसके छोटे छोटे पीसेस बाकायदा किसी ने किए हैं। उस इंसान की ज़िंदगी बहुत अजीरन हो चुकी थी। ना वो सो सकता था, ना वो खा पी सकता था, ना ही वो कोई काम कर सकता था। एक दफ़ा वो तंग आकर बहुत ऊंचा चिल्लाया उस चीज़ के ऊपर कि तुम क्या चीज़ हो और तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों इतनी अजीरन कर दी है। तो किसी गायबाना ताकत ने उसके ऊपर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिए। उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे कि वो वाजिया उसके जिस्म पर महसूस किए जा सकते थे, मगर मारने वाला नज़र नहीं आता था। उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीरन हो चुकी थी। एक आमिल के पास उसको ले जाया गया तो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर किसी बहुत बड़े ताकतवर जिन का कब्ज़ा हो चुका है, जो इसकी ज़िंदगी को इस तरह से अजीरन बना रहा है। फिर उससे पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्या काम किया है जो तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तो उसका कहना ये था कि मैं शादी वाले घर में बैठा हुआ था, मैं मिठाई खा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही मैं घूमने फिरने बाहर गया तो मुझे वॉशरूम में जाना था। मैं घर में आने के बजाय वहाँ पर बरगद का एक पेड़ था और मैं गलती से वहीं पर मैंने वॉशरूम में जाना था, मुझे जो हाजत फील हो रही थी, उसके बाद जैसे ही मैं बरगद के दरख्त के पास से उठा तो मुझे किसी चीज़ ने इस तरह से महसूस हुआ कि मुझे दबोच लिया है। उसके बाद मेरी ये हालत हो गई है। वो जिन्नात उस पर सख्त नाराज़ हो चुके थे और वो उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना रहे थे। कोई भी आमिल उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो बताते हैं कि उनके गांव में हिंदू मज़हब के एक आमिल थे। जब वो आए, उन्होंने जैसे ही अपना अमल करना शुरू किया तो उस जिन ने उनके हाथ की एक उंगली काट कर अलहदा कर दी। वो घबरा कर वहाँ से भाग गए। उनके कंट्रोल में वो चीज़ नहीं आ रही थी। आमिल हजरात भी उस चीज़ से डर गए थे क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में चीज़ आ ही नहीं रही थी। फिर वो कहते हैं उसके घर वाले भी उससे दूर रहने लग गए। काम पर वो वैसे नहीं जा सकता था, ना वो चीज़ उसको सोने देती थी, ना वो उसको कोई काम करने देती थी। अपनी ज़िंदगी से तंग आकर उस इंसान ने सुसाइड कर ली और दरिया में कूद कर अपनी जान दे दी। ये हॉरर इंसिडेंट राजपूत सिंह ने हमारे साथ इंडिया से शेयर किया है। बहुत शुक्रिया आपका राजपूत सिंह। लिसनर्स, बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें मासूम इंसान इस हद तक उलझ जाते हैं, इस हद तक गैर मरीम मखलूक़ात उनकी ज़िंदगियों को अजीरन कर देते हैं कि बाज़ औक़ात या तो वो लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं या अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठते हैं। कभी भी ऐसी गफलत मत किया करें जो आप लोगों की ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदेह हो और आपकी वजह से आपके साथ रहने वालों की ज़िंदगी भी अज़ाब में मुब्तला हो जाए। कभी भी ऐसी जगहों पर कोई ऐसी हरकत मत किया करें जिससे वो चीज़ें आपको पकड़ लें। दरख्तों पर तो वैसे ही इन चीज़ों का बसेरा होता ही है, फिर बरगद के दरख्त तो बहुत मशहूर होते हैं। पाकिस्तान के शहर चन्योट में भी एक जजीरा है जिसके ऊपर एक बहुत कदीम पुराना बरगद का दरख्त है, जिसके साथ एक बहुत पुराना कमरा भी है। वहाँ पर आज तक जो कोई भी गया है उस पर जिन्नात और चुड़ैलों का इस हद तक असर होता है कि वो लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं और अल्लाह माफ़ करे उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में वो जगह है जहाँ पर वो कदीम बरगद का दरख्त है। अब जिन लोगों को पता है कि वो जगह हॉन्टेड है, वहाँ पर जिन्नात है, आसेम है, अगर वो फिर भी इस चीज़ को इग्नोर करें और सिर्फ देखने की गर्ज से अपना शौक़ पूरा करने के लिए वहाँ पर चले जाएं और अल्लाह ना करे किसी मुसीबत का शिकार हो जाए, तो फिर ऐसे लोग यकीन करते हैं। मुझे अक्सर लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप हॉरर स्टोरीज़ कुछ ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ आप शेयर नहीं करती, आप ऐसी स्टोरीज शेयर करें जो बहुत हॉरर हो। मैं आप लोगों के साथ रियल लाइफ बेस्ड हॉरर स्टोरीज़, हॉरर इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं खुद से उनमें कुछ भी
ایڈ بیک نہیں کرتی. جو جس کی زندگی میں گزرا ہوتا ہے میں وہی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہوتی ہے. خود سے ان میں ایڈ بیک کروں گی اگر میں، تو اس میں آپ لوگوں کو بھی انٹرسٹ نہیں رہے گا. ابھی جو چلیوٹ والی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہوں گے. اب بہت سے لوگ ہو سکتا ہے یہ بھی سمجھے کہ یہ وہم ہے، جھوٹ ہے یا مذاق ہے. تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی ان چیزوں کو نہ جھوٹ سمجھے نہ مذاق سمجھے، اور نہ ہی یہ وہم ہے. ان کا وجود ہوتا ہے، اور جہاں پر یہ اپنا آپ ظاہر کر دے وہاں سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے. نماز پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، باوضو رہا کریں، کوشش کیا کریں کہ ان چیزوں کو مذاق نہ سمجھیں. میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری کے ساتھ. آپ بھی ہارر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.